if you are having square packing and if you are having the arrangement A, it will lead to the formation of simple cubic unit cell. In the simple cubic unit cell, the coordination number of an atom in a layer, it is attached to or it is in contact with 4 other atoms, hence the coordination number in a layer is 4. Coordination number as a whole, अभी इसके ऊपर और एक लेयर आएगा, उस लेयर में एक एटम कांटेक्ट में रहेगा, उसके नीचे और एक लेयर होगा, उसमें भी एक एटम कांटेक्ट में होगा. So net में you have 6 atoms touching this particular atom. Okay, hence the coordination number of an atom in the simple cubic unit cell is 6. If you are having square packing and the arrangement is AB type of arrangement, in that case you will have body centered unit cell. And इसमें if they are asking the coordination number, ये जो particular atom है इसके नीचे layer में 4 से connected है, इसके ऊपर 4 से connected है, hence the coordination number become 8. Okay, so अभी FCC unit cell जो है, in FCC unit cell the packing is not the square packing, it is hexagonal packing. एक बार देखो, ऐसा hexagon से सब बन रहा है. Okay, hence the packing is called as hexagonal packing. इस hexagonal packing में suppose मान लेते हैं this is layer A. ये जो है this is layer A. अभी मैं इसके ऊपर layer B प्लेस कर रहा हूँ. And layer B कैसे प्लेस कर रहा हूँ, एक बार everyone observe. मैं यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, are these two different layers? दो different layers होंगे ना, because its center is not coinciding with the center of these spheres. Okay, so ये एक है, this is also hexagonal only, right? इसके नीचे और एक मार्क किया तो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू होता जाएगा. ओके, यहाँ पे भी आपको हेक्सागन बनेगा, आपको बस इतना ही शो कर रहा हूँ इसमें. सो दिस इज लेयर बी. ओके, अभी इसी के ऊपर लेयर बी के ऊपर सपोज मान लेते हैं आई एम रिपीटिंग लेयर ए. रिपीटिंग लेयर ए का मतलब आई एम प्लेसिंग वन मोर लेयर सच दैट इट विल कोइंसाइड विद दिस, और जो सेंटर से इट विल बी कोइंसाइडिंग विद दिस. ओके, तब क्या होगा, everyone please try to observe this. लेयर ए ऐसे कंटिन्यू करते गया. नीचे एक हेक्सागन है एवरीवन, नीचे एक हेक्सागन है, ऊपर एक हेक्सागन है, बीच में 3 एटम्स है. ओके, नीचे एक हेक्सागन, ऊपर एक हेक्सागन आएगा, बीच में ये 3 स्फीयर्स रहेंगे. That particular packing is called as hexagonal closed packing. Okay, hexagonal closed packing. उसका यूनिट सेल अगर ड्रॉ किया तो इट्स अ डिफरेंट यूनिट सेल. ये वाला यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ. यूनिट सेल क्या होगा, नीचे एक लेयर होगा हेक्सागन का लेयर, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये वाला बीच में एक एटम रहेगा. ओके, ऊपर एक हेक्सागन लेयर रहेगा, वो 6 और बीच में एक एटम. इन दोनों के बीच में सैंडविच होते हुए यू आर हैविंग 3 एटम्स. उसको ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में आएगा. वेट, unit cell of
HCP. HCP indicates hexagonal closed packing. I hope आप लोग को दिख रहे थोड़ा बहुत. चलेगा. बीच में एक एटम है. थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बट ठीक है. ओके. इनके अलावा यू आर हैविंग 3 atoms. देखो इसी को मैं ड्रॉ किया. You are having 6
ये 1 2 3 4 5 6 along with 7. नीचे लेयर में ये 7 एटम्स है, देखो ये 7 एटम्स है, बीच में यू आर हैविंग सैंडविच ऑफ 3 एटम्स, ये 3 ड्रॉ किया, एंड ऊपर और 6. ओके, दिस पैकिंग इज कॉल्ड, और 7, ये 6 और ये 1. This is called as hexagonal closed packing, which is formed by repetition of A, B, A, B of hexagonal packing. AB, AB, AB of square packing will give you body centered unit cell. AB, AB, AB of hexagonal packing will give you hexagonal unit cell, hexagonal closed packing unit cell. Okay, ये clear है? हाँ सर. ओके, ठीक है. इसमें कुछ रिलेशन सब मार्क करेंगे. देखो, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, ये कितना होगा? ये आप लोग मैथ से डिराइव कर सकते हो. ये जो हाइट है, दिस हाइट इज इक्वल्स टू, आप ये रिजल्ट याद ही रख लेना, 4r into root over 2/3. The distance between these two layers. Okay, ये बीच में ये लेयर छोड़ के, the distance between these two layers is 4r times root over 2/3. इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% आता है. इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% आता है. So this is also a closed packing. This is hexagonal closed packing, HCP. Not a cubic closed packing. This is hexagonal closed packing. अभी इस particular case में what will be the contribution from the corner? Contribution of atom from the corner. 2. कितना? 2. 2. These are corners first of all. ये कॉर्नर जो एटम है कितने में शेयर होता है? 1/12. 1/12. 8. 1/8. ऐसा सोचा, थोड़ा विजुलाइज करो. यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे एक हेक्सागन रहेगा, ये जो है यहाँ पे एक हेक्सागन रहेगा. सो इन ए प्लेन, यहाँ पे एक हेक्सागन, यहाँ पे एक हेक्सागन. सो यू आर हैविंग 3 हेक्सागन्स हियर. वैसा ही ऊपर भी 3 हेक्सागन्स रहेगा ना. सी फॉर द हेक्सागन्स. 1/6. 1/6 होगा. रफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक बार देखो, एरेज कर दूंगा वो पार्ट. ये एक होगा, ये एक होगा. देखो, दिस हेक्सागन, दिस हेक्सागन, दिस हेक्सागन, 3 शेयर हुआ. ऐसे ही ऊपर भी 3 होगा. ओके, सो द कंट्रीब्यूशन विल बी 1/6. I hope this is clear. Contribution of atom from the corner. Will be 1/6. From the face, ये वाला कितना होगा? 1/2. 1/2. इसके अंदर बीच में जो एटम्स है, these are entirely present inside the unit cell. So उनके वजह से contribution 1 होगा. So can anyone tell me the rank?
rank of HCP. You have how many corners? 12 corners. 12 corners. Its contribution is 1 1 by upon 6 plus 2 faces. Having atoms, so you have 2 faces with atoms. So 2 into half plus 3 atoms completely inside a 3 into 1. So what is the rank? 2 plus 1 plus 3, which is equal to 6. So HCP के लिए Z कितना है? 6. 6. Z equal to 6. Rank is equals to 6. Is this clear? But हमको क्या देखना है? This is HCP unit cell, which is a different unit cell. What we are interested in is FCC, na? Face centered cubic or CCP, cubic closed packing. Cubic closed packing आपको कैसे बनेगा? देखो, if you are placing a layer, third layer coinciding with this, if you are placing a third layer coinciding with this, you are getting AB, AB, AB and hexagonal packing आ रहे ना? Place a layer अभी लेयर प्लेस करो, यहाँ पे प्लेस करो. Place the layer here. Is this a new layer or the same layer? New layer. New layer ना दिख रहे हैं ना आपको? हाँ. So this is a new layer. So ये जो layer है, this is मान लेते हैं, this is layer C. Okay. So ये जो particular arrangement है, इसमें थोड़ा visualize करना मुश्किल होगा. A B C इसके ऊपर फिर से ABC repeat करो. ABC type of arrangement will lead to the formation of cubic closed packing. ABC type of arrangement will lead to the formation of cubic closed packing. Okay. ये जो layer 3 जो भी बनाया मैंने, everyone again please observe. I am placing this particular blue sphere on this particular region, na? In this particular region. Okay. So ये जो region है, the space between, देखो everyone please again observe. ये जो space है, ये space किस वजह से बना है? इधर 3 spheres है. Observe the black spheres and उसके ऊपर you are having pink spheres. और ये 3 spheres, ये pink spheres, इसके बीच में एक space है ना? It is an empty space. Any empty space is called as void. ये जो empty space है, it is formed from how many spheres? 1, 2, 3. Black का 3 और pink का 3 spheres. Okay, so as it is formed from 6 spheres, this particular empty space is called as, empty place is called as octahedral void. It is called as the octahedral void. Confuse होने की कुछ जरूरत नहीं. और एक बार उससे पहले let us take this space. मैं zoom कर रहा हूँ, everyone concentrate. ये black sphere, ये black और ये black, ये 3 spheres है, उसके ऊपर मैंने एक pink का sphere रखा. So you are having a total of 4 spheres. ये 4 spheres के बीच में इधर एक space दिख रहा है आपको? So that particular space is called as void, and this void is formed because of how many spheres in contact? 4. 1, 2, 3, 4. 4 na? Hence that particular void
is called as tetrahedral void. इसको बोलेंगे T void. Okay. This void is called as tetrahedral void. ये भी tetrahedral void है. ये वाला भी एक tetrahedral void है, which is found from 4 spheres. वैसे ही मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, concentrate. ये वाला black sphere, ये वाला black sphere, ये वाला black sphere. Okay. इन 3 black spheres के ऊपर you are placing 3 pink spheres. Okay. इनके वजह से यहाँ पे जो भी स्पेस बना है इन दोनों के बीच में, ये 3 पिंक और 3 ब्लैक के बीच में जो भी स्पेस बना है, that is called as octahedral void. A void which is formed from a void which is formed from 6 spheres is called as octahedral voids. Or else ये जो space है, this space is in contact with these 3 spheres, ऊपर का pink spheres और नीचे का 3 black spheres. Okay. So वो जो नया layer बना रहा हूं मैं, that new layer is formed by closing that particular octahedral void. मतलब उसके ऊपर रख रहा हूँ, octahedral void के ऊपर place कर रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ. Okay. उसका placement है, that is in the line of octahedral void. That is a different layer. Different layer तो आप लोग को दिख ही रहे. ये void का concept हमको future में use होगा, इसलिए यही पे समझा रहा हूँ. Is this clear? हाँ सर. ये भी एक space है which is called as octahedral void. I hope ये आपको अच्छे से दिख रहा है. ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको ऑनलाइन में ही समझाना इजी होगा, ये बोर्ड में मुझे समझाना ज्यादा मेहनत लगेगा इन सबको ड्रॉ करके. आई होप आप लोग को क्रिस्टल क्लियर समझ में आया. ओके. हाँ. ठीक है. कैन आई ऑल्सो से अगेन, ये जो पर्टिकुलर वॉइड है ये क्या हो जाएगा बताओ? स्पेस है. ये जो स्पेस है यहाँ पे बना, व्हाट इज दिस वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड. 3 पिंक है और नीचे एक ब्लैक है. सो दिस इज अगेन अ टेट्राहेड्रल वॉइड. सो यू नीड टू नो how to identify a tetrahedral void and octahedral void. Okay. Okay. यहाँ पे जो स्पेस बनेगा, कैन आई से दिस विल बी एन octahedral void, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक ब्लू वाला स्फीयर भी आएगा, 3 ब्लू स्फीयर्स और ऊपर 3 ब्लैक स्फीयर्स. सो ये जो पर्टिकुलर void होगा, दिस विल अगेन बी octahedral void. Okay. So you have combination of tetrahedral and octahedral voids inside this. Can I say that? Can I say that? Okay. Yes. So in these unit cells, inside these unit cells, you have some spaces which are called as tetrahedral and octahedral voids. So हमको question में they will ask the number of tetrahedral voids, number of octahedral voids per unit cell. So अभी एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल रहेगा. नंबर ऑफ टी वॉइड्स, टी इंडिकेट्स टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 2 into effective number of atoms, मतलब 2 into rank, 2 into effective number of atoms. Number of octahedral voids will be equal to effective number of atoms. So with the help of that formula, can you tell me HCP के अंदर T voids कितना रहेंगे? 12. 12. Octahedral voids
6. वेरी गुड। वो एग्जैक्टली कहाँ क्या क्या है वो दिखाना इसमें ये 2 डायमेंशनल में मुश्किल रहेगा। अगर हमको स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर देख सकते हैं। ओके, बट जरूरत नहीं। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2 times effective number of atoms, octahedral voids will be effective number of atoms. So ये जो AB type of AB जैसा रिपीट हुआ तो it will lead to the formation of hexagonal closed packing HCP unit cell. If you are having a ABC type of unit cell, A B C A B C, this is cubic closed packing or face centered cubic FCC. Okay, so in FCC or in CCP you need to see 3 different layers. So मैं आपको FCC ड्रॉ करता हूँ और ड्रॉ करके आपको उसके अंदर 3 different layers दिखाऊंगा। ओके, इसमें देखो ये HCP में यू आर हैविंग ओनली 2 different layers, ये एक लेयर फिर से ये कंटिन्यू हुआ। सो ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। सो दिस इज AB टाइप, सो दिस विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CCP। सो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। Everyone try to visualize. ओके, FCC में पोजीशन कहाँ पे रहेगा? You are having atoms And face center at the corners. टू डायमेंशनल में फेस सेंटर पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, यहाँ पे एक फेस सेंटर है, इसको ब्लू से मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एक फेस सेंटर, यू आर हैविंग ए फेस सेंटर हियर। ये भी एक कॉर्नर ही है। You are having a face center here. ये इसका फेस सेंटर है। You are having one more face center. इसका यहाँ पे कुछ तो रहता है ना, ये वाला, इस फेस का, ये जो पीछे जो फेस है उस फेस का एक होगा। एक मिनट,
Give me 2 minutes. एक बार सभी लोग ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। देखो, वी आर सीइंग फ्रॉम दिस एंड, ये जो कॉर्नर पकड़ो, इसके ऊपर से हमको विजुअलाइज करना है। सो दिस बिकम्स द फर्स्ट लेयर विच हैज ओनली सिंगल एटम। ओके, दिस बिकम्स द फर्स्ट लेयर विच हैज ओनली सिंगल एटम। अभी इसके पैरेलल में ये वाला ट्रायंगल रहेगा, इसके पैरेलल में, इसके नीचे ये वाला ट्रायंगल का लेयर रहेगा। उसके ऊपर हमारे पास क्या क्या एटम्स है, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस फेस का सेंटर, ये जो है इस फेस का सेंटर और इस फेस का सेंटर। ओके, सो दीज एटम्स विल बिकम सेकंड लेयर। आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? सर दोबारा। सर फिर से सर। हाँ, देखो देखो आराम से देखो, क्यूब को आप लोग यहां से देख रहे हैं। ओके, यहाँ से देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे प्लेस योर आई हियर, यहाँ से देख रहे हैं। स्टार्टिंग में यू विल सी ओनली वन एटम, इस कॉर्नर को देख रहे हैं आप। ओके, यू विल बी सीइंग वन एटम। उसके नीचे इस लेयर में यू विल बी सीइंग दीज एटम्स, ये फेस सेंटर, ये वाला और ये वाला फेस सेंटर, ये कॉर्नर, इस फेस सेंटर और ये ट्राइंगल के ऊपर। ओके, उसके नीचे जो है, उसके नीचे जो लेयर है, ये लेयर है, ये ट्रायंगल। दिस इज ए डिफरेंट लेयर एंड दिस ट्रायंगल ऑफ एटम्स आर डिफरेंट लेयर। सब कोइंसाइड तो नहीं हो रहे ना? कोइंसाइड हुआ क्या? नहीं। ओके, सो ये वाला ट्रायंगल पैरेलल में रहेंगे। इसके एग्जैक्ट नीचे आएगा ये एटम, इस फेस सेंटर, ये वाला फेस का फेस सेंटर, ये एटम, इस फेस का फेस सेंटर, ये सारे एटम्स एक सरफेस में है। ये फर्स्ट लेयर हुआ, दिस ट्रायंगल ऑफ एटम सेकंड लेयर हुआ, ये वाला ट्रायंगल ऑफ एटम्स थर्ड लेयर हुआ। उसके नीचे फिर से कॉर्नर आ जाएगा। देखो, दिस कॉर्नर, इफ यू आर सीइंग फ्रॉम हियर, दिस सेंटर विल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद दिस सेंटर। हाँ। ऊपर से देख, यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, वो क्यूब को टिल्ट करके देख रहे हैं। यू आर मेकिंग द क्यूब टू स्टैंड ऑन दिस। ओके, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्लेस करके यू आर विजुअलाइजिंग इट। इस पर्टिकुलर ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के एग्जैक्ट नीचे ये आएगा। सो अगेन द लेयर इज रिपीटिंग नाउ। दिस इज लेयर ए, दिस इज लेयर बी, दिस इज लेयर सी, अगेन यू गॉट लेयर ए बी सी, ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो ये जो आई होप दिस इज क्लियर। ये जो FCC है, it is made up of 3 different layers, and in FCC the type of packing is hexagonal closed packing. These 3 layers are formed from hexagonal closed packing. उसको हम ब्रेक करके ये क्यूब जैसा बनाया हमने, क्यूब जैसा बना के हम विजुअलाइज कर रहे हैं। बट ये एग्जैक्टली कैसे बनता है? बाय दिस अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट में हम एक पर्टिकुलर शेप में उसको कट कर रहे हैं, दैट इज दिस क्यूबिक यूनिट सेल। उस क्यूबिक यूनिट सेल में सेंटर पे और आपको कॉर्नर्स पे एटम्स आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ सर। ओके, हाँ। so this is the FCC unit cell.
FCC unit cell generated as part of cubic closed packing. ओके इसका भी पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? दिस इज आल्सो 74%. ये जो HCP है, HCP में भी वही हेक्सागोनल पैकिंग किया है ना हमने. HCP में भी हेक्सागोनल पैकिंग है, इसमें भी हेक्सागोनल पैकिंग है, एंड दिस इज आल्सो ए क्लोज्ड पैकिंग, दिस इज आल्सो ए क्लोज्ड पैकिंग. इसलिए दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी 74% रहता है. वैसे याद रखना आप लोग. ओके सर वो क्यूबिक क्यों बोल रहे हो उसको? किसको? सर एबीसी वालों को. ये है क्या एबीसी वालों को क्या बोल रहा हूँ? क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये यूनिट सेल जो लिया है हमने, क्यूब बनाया ना, क्यूब के अंदर क्लोज्ड पैकिंग है. ये जो यूनिट सेल यहाँ पे जो बनाया है ये हेक्सागन जैसा है ना, दिस इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. ये जो है क्यूब है ना, इसको क्यूब जैसा कट किया हमने. 3 डिफरेंट लेयर्स है उसका, उस क्यूब के अंदर. एबीसी टाइप हुआ इसलिए 3 डिफरेंट लेयर्स. लेयर 1, लेयर 2 ट्रायंगल, लेयर 3 और एक ट्रायंगल, उसके बाद फिर से लेयर 1 रिपीट हो रहा है. ये कॉर्नर एक जैसा है. समझा? हाँ सर. हाँ सर. एवरीवन एनी डाउट? सर वो ट्रायंगल्स के सरफेस कोइंसाइड करते हैं क्या? ट्रायंगल के ये जो ट्रायंगल्स है आपको पैरेलल रहेंगे. they won't meet, they won't at all, they don't intersect. ये एक पैरेलल ट्रायंगल है, उसके नीचे और एक पैरेलल ट्रायंगल है. हाँ हाँ. they are not intersecting. एक बार देखो, ये इस साइड जा रहा है, ये उस साइड हो रहा है. they will be parallel. हाँ सर. ओके हाँ. ठीक है. so this is about origin of the unit cells. now let us understand the types of voids. voids का मतलब अभी देखा है ना हमने, वो जो स्फीयर्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस जो बन रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज void. what is the importance of this voids? क्यों पढ़ना है देखेंगे. types of voids. what is a void? Empty space. empty space. voids are nothing but empty spaces between the atoms of the lattice. empty spaces between the atoms of the lattice. Basically, you can define 4 different types of voids. First void, trigonal, tetrahedral, octahedral, and then last type, cubic. ये जो trigonal void है, it is formed by 3 atoms. Tetrahedral void is formed by 4 atoms. Octahedral void is formed by 6 atoms.
and a cubic void is formed by 8 atoms. हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में देखा, उनके बारे में फिर से रिपीट करता हूँ. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ट्राइगोनल वॉइड. एक ट्राइगोनल वॉइड कैसे बनेगा? ओके, इसको देखो. इसका सेंटर ये होगा ना, ये इसका सेंटर, इसका सेंटर. Everyone in the lecture? Yes, sir. So ये 3 spheres है, इनके centers को mark किया मैंने. If these 3 spheres are in contact with each other, इसके बीच में जो भी space बन रहे, इसके बीच में जो भी space बन रहे, that particular space is called as trigonal void. Okay, that particular space is called as trigonal void. अगर उसके अंदर if I am trying to fit a sphere, देखो उसके अंदर एक sphere को मार्क किया, उसके अंदर if I am trying to fit a sphere, what we need to get is what is the radius of the sphere which I can exactly fit inside this particular trigonal void. What should be the radius of the sphere which I can exactly fit inside this particular trigonal void? ये जो बड़ा spheres है, इनका radius मैं capital R ले रहा हूँ. So यहाँ से यहाँ तक distance कितना होगा? Everyone, ये जो particular distance है, यहाँ से यहाँ तक distance बताओ कितना है? R. कैपिटल R. So ये जो particular distance कितना होगा? This is कैपिटल R प्लस, अगर वो जो sphere है स्मॉल r है तो it is r plus small r. हाँ. अच्छा, इतना छोटा दिखता है. This is capital R, वो वाला r plus small r, और else उस ट्राइंगल को बाहर लेके आओ. This is r plus small r. This is capital R. What is this angle? How much? 30 degrees. ये एक equilateral triangle है, exactly बीच में से जाएगा, so 30. So you are having 30 degrees angle. So what is cos 30? √3/2. Cos 30 is √3/2, and इस particular case में it is capital R adjacent by hypotenuse ना, capital R upon r plus small r. So this is 2r equals to √3 capital R plus √3 small r, or I can say r upon capital R.
radius of the sphere which I'm fitting inside the trigonal void divided by radius of the spheres equals to, this is 2 minus root 3 upon root 3. Okay, so ये हमको याद रखना है. This value becomes, ये जो r upon capital R, इसका जो वैल्यू है 2 minus root 3 upon root 3, this is 0.155. You need to remember this value. .155. Okay. So in a way, वो जो shape of the void या size of the void, okay, it depends upon the unit cell and the packing. ये जो ट्राइगोनल वॉइड है, आपको समझाने के लिए, वॉइड का मतलब समझाने के लिए बताया. This trigonal void will not be present in any of the unit cells. Simple cubic में या face centered में, किसी में भी हम डिस्कस ही नहीं करेंगे. Trigonal void, बाकी voids को समझने के लिए we have started with trigonal void. Okay. So don't worry, हर एक चीज को विजुलाइज करेंगे. The size and shape of the void depends upon the unit cell and packing. Further, the size of the void is expressed in terms of the radius ratio of the sphere that can be exactly fit of the sphere that can exactly fit in the void to the radius of surrounding spheres. A point clear है? We are always interested in that R upon capital R value. Trigonal void के लिए R upon capital R is 0.155. If the ratio is exactly 0.155, it will exactly fit. Okay. समझ में आया? हाँ. ये बताओ, थोड़ा विजुलाइज करके बताओ, अगर R upon capital R, if it is greater than 0.155, तब क्या होगा? मतलब ये बीच में जो स्फीयर है ना, उसका रेडियस मैं बढ़ा रहा हूँ. If the radius of this sphere increases, what will happen to the contact of these three spheres? बीच वाला बढ़ा दिया साइज, तब इनके तीन के बीच में कांटेक्ट क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा. So the contact will break. Okay? हाँ. उससे इस स्फीयर से, इस पर्टिकुलर स्फीयर से वो छोटा हो गया तो क्या होगा? 0.155 से कम हुआ तो इंटरसेक्ट मतलब वो एक दूसरे में ऐसा मर्ज हो जाए. मर्ज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद रुक जाएगा ना. अगर ये छोटा हो गया तो दिस वोंट बी इन कांटेक्ट विथ वन स्फीयर.
it can be in contact with only 2 spheres at any point. अगर बड़ा हुआ तो it can be in contact with these 3 spheres, but these 3 spheres वो अपने आप में contact break हो जाएंगे. अगर ये sphere छोटा हो गया तो कोई एक sphere से ये touch नहीं होगा, छोटा sphere. It will be in contact with only 2 spheres. समझ में आया? हाँ. So if it is an exact fit, ये तीनों भी अपने आप में contact रहेंगे. If I ask you what is the coordination number of this small sphere, what will be the answer? 3. 3, because it is in contact with 3 spheres. If I ask you the coordination number of the small sphere, if r by r is less than 0.155, तब क्या होगा? 2. 2, because it will be in contact with only 2. Okay? हाँ. Okay. I hope ये आपको समझ में आया. उसका हम बाद में यूज करेंगे. Let us go to tetrahedral void. टेट्राहेड्रल वॉइड किस में बनता है पहले देखते हैं. If you are taking FCC, everyone concentrate. ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर और ये 3 एटम्स, 3 फेस सेंटर्स. This corner along with these 3 face centers, can I say they can form a tetrahedral void. नीचे 3 रहेंगे और ऊपर 1. यहां से देखना है आपको फिर से ऊपर से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से. ये एक स्फीयर है, इसके नीचे ये 3 स्फीयर्स है. These 3 spheres along with this sphere, 4 हुआ एटम्स. उसके बीच में जो भी स्पेस बनेगा, it will be called as tetrahedral void. Is this clear? हाँ. Sir. Okay. So a tetrahedral void is found inside a FCC unit cell. FCC के अंदर tetrahedral void दिखता है. इसके बारे में लिखते हैं. उसको tetrahedral void करके क्यों बोलते हैं? Again, I want you to visualize. इस स्फीयर का सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर, इन सबको ज्वाइन किया तो you will be forming a structure which is called as tetrahedron. टेट्राहेड्रन का मतलब क्या है? टेट्रा इंडिकेट्स 4, हेड्रा इंडिकेट्स प्लेन. टेट्राहेड्रन मतलब a geometry which has 4 surfaces और 4 planes. वो 4 planes कैसे रहेंगे? देखो, इसको इन 3 को टच करते हुए, ये 3 को ज्वाइन करते हुए एक प्लेन बनेगा. ये 3 को ज्वाइन करते हुए और एक प्लेन बनेगा. ये 3 को ज्वाइन करते हुए और एक प्लेन बनेगा. नीचे एक प्लेन बनेगा इन 3 को ज्वाइन करते हुए ये 3 एटम्स को. ओके, यू आर हैविंग 4 सरफेसेस. ऐसा कुछ है. इधर एक, इसके पीछे एक, मतलब 2 डायमेंशनल ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा. समझ में आया? हाँ सर. ओके. Hence it is called as tetrahedron. ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं, आपको क्लियर आइडिया आएगा. It is a void surrounded by 4 spheres. On joining, the centers of these 4 spheres we obtain a tetrahedron
and the void is located at the center of this tetrahedron. Okay. What is the location of the void? It is present in FCC. वो FCC के अंदर रहेगा. Can I say it is present on body diagonal? ये जो है इन तीन है. That particular space will be present on the body diagonal. If you draw the body diagonal will be passing through that particular tetrahedral void. It is present in FCC near each corner. Along the body diagonal at 1/4 length of body diagonal from the center, from the corner. Everyone, आप लोग जिस रूम में अभी बैठा है, observe the corner. उस पर्टिकुलर कॉर्नर को दूसरे ऑपोजिट एंड के कॉर्नर को मीट करो. यू विल फॉर्म ए बॉडी डायगोनल. उस बॉडी डायगोनल के ऊपर, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या है, उस बॉडी डायगोनल के ऊपर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/4 फ्रॉम द कॉर्नर, और कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे और रहेगा. आया समझ में? हाँ. बॉडी डायगोनल के ऊपर रहेगा and the distance is 1/4 from the corner. 1/4 from the corner. 1/4 of the body diagonal. Okay. What is the length of the body diagonal? √3a. √3a. So if I try to find the radius ratio, के लिए कॉर्नर पे एटम है whose radius is capital R. ओ बॉडी डायगोनल के ऊपर you will be having tetrahedral void whose radius is small r. R plus R must be equal to 1/4 the distance of body diagonal na. So it will be √3a upon 4. Okay. And what is the relation between capital R and A for FCC? For R is equal to √2a. ये भी पता है हमें. तो थोड़ा कैलकुलेशन करके I can mark R plus small r equals to √3/4 into A क्या होगा? 4r upon √2. 4 cancel होगा. So if I say if I calculate small r equal to √3 upon √2, वो उस साइड गया तो -1 हो जाएगा. आई एम टेकिंग कैपिटल R एज कॉमन. वो R को उस साइड लेके गया. कैपिटल R एज कॉमन, √3/2 -1 into capital R. और we are interested in R upon capital R ना, which is equal to
√3/2 -1। इसका वैल्यू फाइंड किया तो R/R इक्वल्स टू 0.226। आया समझ में? हाँ। Again, you need to remember this. ट्राइगोनल वॉइड के लिए रेशियो क्या है? 0.15। 0.15। वेरी गुड, 0.155। इसके लिए 0.226। अगेन जैसे उसमें हमने किया है, if it is exactly 0.226 then it will exactly fit and all these 4 atoms also will be in contact with each other. ये atom, ये atom, ये atom, ये भी सारे अपने आप में टच होंगे। Okay, this and this. If it is greater than 0.226 what will happen? If it is greater than 0.226 उसको स्पेस अकोमोडेट होने के लिए इनके बीच में कांटेक्ट क्या होगा? ब्रेक होगा। क्लियर? हाँ। If it is less than 0.226 what will happen? It will be in contact with only 3 atoms. हाँ। यहाँ पे क्या किया? 0.155 से कम है तो 2 एटम से ही कांटेक्ट में है। 3 से होना चाहिए बट 2 एटम से ही कांटेक्ट में रहेगा। वैसा ही यहाँ पे क्या होगा? 0.226 से कम है तो it will also be in contact with only 3 atoms. Then it will be a case of trigonal void. Okay? और 3 एटम से ही कांटेक्ट में हो रहे हैं ना, सो 3 एटम्स के स्पेस जो भी बना है उसके अंदर है वो। Then we will say it as trigonal void. So concept क्या है? 0.155 पे you will have perfect fit for the trigonal void. 0.155 से और रेशियो और रेडियस रेशियो बढ़ाते जाओ, you will be having imperfect fit. मतलब these things are not in contact with each other, but this central sphere जो भी है it will be in contact with these 3 spheres. So 0.55 से 0.155 से लेके 0.226 तक it will be imperfect fit of trigonal void. 0.226 पे क्या हो जाएगा? It will become tetrahedral void. समझ में आया? हाँ। 0.226 के ऊपर क्या होगा? It will be imperfect tetrahedral void, क्योंकि वो एग्जैक्ट फिट नहीं हो पा रहे। समझा? सर वो टेट्राहेड्रल में भी वो स्मॉल पेयर जैसा हमने फिट किया है क्या? हाँ, टेट्राहेड्रल में भी वो स्मॉल स्फीयर जैसा फिट कर रहे हैं। ये रेडियस रेशियो तभी तो फिट करेंगे ना। यहाँ पे वो जो स्पेस बनता है अभी वो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है ना। ओके, यहाँ पे जो स्पेस बनता है उसके अंदर फिट किया, whose radius I am considering it as small r. Okay, and that is present at a distance. उसका सेंटर जो है it is present at a distance of √3a/4 from the corner. Okay, उसके सेंटर को कनेक्ट करते हुए उधर कॉर्नर का एटम रहेगा ना, उसका रेडियस है कैपिटल R. So r plus capital R is √3a/4. Okay. Try to visualize that. NCERT टेक्स्ट बुक में और भी कुछ डायग्राम्स रहेंगे, उनको भी देखो एक बार। ठीक है। Can anyone tell me the number of tetrahedral voids that are going to be present inside an FCC? Number of tetrahedral voids in FCC unit cell कितने हैं? 8. कैसे किया? 2 into rank. वेरी गुड। एक तो डायरेक्टली इससे हो सकता है 2 into रैंक,
लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज वो 8 कहाँ पे रहेंगे. इस कॉर्नर को पकड़ो, इस कॉर्नर को पकड़ा तो इसके 1/4 डिस्टेंस पे बॉडी डायगोनल पे एक है. वैसा ही इस कॉर्नर को पकड़ा तो उसी बॉडी डायगोनल के ऊपर और एक 1/4 डिस्टेंस के ऊपर रहेगा. ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स? इधर से ये 1/4, इधर से ये 1/4 आया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा? हाफ द बॉडी डायगोनल. ओके, हाँ. ठीक है. सो एक बॉडी डायगोनल के ऊपर कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स है? 2 टेट्रा. 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. कितने बॉडी डायगोनल्स रहते हैं क्यूब के अंदर? 4. 4. जॉइन द कॉर्नर्स. इन दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को. सो यू आर हैविंग 4 डायगोनल्स. हर एक डायगोनल के ऊपर 2 रहेंगे. सो इसलिए यू हैव 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इनसाइड एफसीसी. बट आपको ऑलरेडी हमने एक फॉर्मूला भी लिखा है विच इज 2 into rank, 2 into z, which is equal to 2 into 4, which is equal to 8. Okay? हाँ. Okay. Number of atoms surrounding a tetrahedral void कितने? 4. 4, because a tetrahedral void is formed by 4 atoms, na? So number of atoms surrounding a tetrahedral void will be 4. दूसरे type of question. Number of tetrahedral voids surrounding an atom. ये क्वेश्चन देखो, it is where I am asking the number of tetrahedral voids surrounding an atom. Anyone? कितने? 2. 2. No, not the right answer. मतलब क्वेश्चन क्या है? एक एटम कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स से कांटेक्ट में रहेगा? दैट इज द क्वेश्चन. 1/4. नो. सर, द नंबर 5. ऑफ 5. नो. इधर देखो, यहाँ पे ये ऑब्जर्व रखो, इसको देखते हुए थोड़ा कोशिश करो. एक एटम, सपोज कोई भी एटम पकड़ सकते हो, ये एफसीसी में ये एक एटम है ना, ये जो एटम है कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के कांटेक्ट में रहेगा? This in contact with how many tetrahedral voids? 4. No. Everyone observe. ये जो पर्टिकुलर कॉर्नर एटम है, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में एक बॉडी डायगोनल से कांटेक्ट में है. इट कैन फॉर्म ओनली वन बॉडी डायगोनल ना. सो उस बॉडी डायगोनल में यहाँ पे जो भी 1/4 डिस्टेंस पे जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड है वो इसके वजह से ही बना है, इस एटम की वजह से बना है ना. सो इट इज इन कांटेक्ट विथ वन टेट्राहेड्रल वॉइड हियर. ओके, in this unit cell it is in contact with one tetrahedral void, but ये जो corner है it is shared by how many unit cells? 8. A corner is shared by 8 unit cells.
हर एक कॉर्नर, हर एक यूनिट सेल में एक बॉडी डायगोनल तो होगा ही है, होगा कि नहीं? हर एक यूनिट सेल में इफ यू आर हैविंग वन बॉडी डायगोनल, हर एक यूनिट सेल के अंदर 1/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा ना। मतलब यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऊपर जो यूनिट सेल है यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा। सो इट विल बी हैविंग 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और it is in contact with 8 tetrahedral voids. समझा? और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन क्या है? आई एम आस्किंग, हर कोई एटम, कोई भी एटम आप लोग ये जो एफसीसी में अगर लिया तो दैट एटम इन कांटेक्ट विद नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछ रहे। ये जो एटम है इस यूनिट सेल के अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाना किसके वजह से? ये एटम और ये 3 एटम्स की वजह से एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना। सो दिस एटम इज इन कांटेक्ट विद द टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ। This is for 1 unit cell, but this corner is shared by 8 unit cells. So in 8 unit cells, you will be having that atom in contact with 8 tetrahedral voids. हाँ सर। Okay. हाँ। Okay. ये हो गया everyone. ये हो गया ये कॉर्नर एटम का। फेस सेंटर का कैसे देख सकते हैं? फेस सेंटर का देखो, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा। ओके, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब 4 हुआ इस डायरेक्शन में। इस सेल के अंदर, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर बॉडी डायगोनल्स के ऊपर आप लोग देख रहे तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड 1/4 डिस्टेंस पे, यहाँ पे 1/4 डिस्टेंस पे, यहाँ पे 1/4 डिस्टेंस पे, यहाँ पे 1/4 डिस्टेंस पे। कितना हुआ? 4 हुआ। This is in 1 unit cell. A phase center is shared by 2 unit cells. So इस यूनिट सेल में 4, इस यूनिट सेल में 4 रहेंगे। टोटल कितना हुआ फिर से? 8. Okay. So कोई भी एटम पकड़ो आप, it will be surrounded by 8 tetrahedral voids. Very very important to understand this and to remember the result. The number of tetrahedral voids surrounding an atom in FCC will be 8. ओके, सिंपल एफसीसी के लिए और फेस सेंटर एटम जो भी है तो फेस सेंटर एटम को दिखाने के लिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ओके, बीच में आपको फेस सेंटर एटम है, टेट्राहेड्रल वॉइड आपको 1/4 बॉडी डायगोनल पे रहेगा। यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा। सो पर यूनिट सेल it is in contact with 4. So this particular phase center is shared by 2 unit cells. So total आपको 8 रहेगा। Per unit cell a phase center is in contact or surrounded with 4 T voids. Okay. I hope this is clear. ठीक है. We will understand about the octahedral void and cubic void in the next lecture and उसका further applications देखते हैं. Thank you.